नाउ सिंपल पेंडुलम का है केस है, आप इसका टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो कोशिश करके। ट्राई करो, ठीक है। थोड़ा सा, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट राइट हियर, नेट फोर्स इज 0 हियर, so we will just displace it from equilibrium position, max distance, okay। तो लिया तो क्या होगा अभी, इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस रहेगा, mg होगा, एक तो mg नीचे होगा, दूसरा अगर ये थीटा है, टेंशन इस तरफ होगा, देन ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, isn't it? This is vertical, this is vertical, दोनों parallel, this is one line, this is theta में, this is theta में, this will also be theta, this will become mg cos theta, right? yes, This will become mg sin theta, right? yes, So ये mg sin theta is a restoring force which will make the ball to come towards the mean position, okay? The restoring force is mg sin theta, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन तो पता चलना है। आपको लिख सकते हो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, अपोजिट साइड पे, hypotenuse, अपोजिट साइड पे हाइपोटेन्यूज, राइट। तो जब थीटा स्मॉल है तो आप ओके, तो अपोजिट साइड opposite x है, थीटा, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, थीटा स्मॉल है, दिस इज एक्चुअली कर्व राइट, आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क राइट, ऐसे ऐसे होगा, बट जब थीटा बहुत स्मॉल हो इसको मैं ऐसे वायर straight ले सकते स्ट्रेट लाइन समझ सकता हूँ, है ना, नहीं मतलब एग्जांपल अब देखो, एक सर्किल है, दिस इज ए कर्व राइट, बट थीटा बहुत स्मॉल हो जाता है, इसको कर्व, पार्ट ऑफ द कर्व ओनली, बट स्ट्रेट लाइन सोच सकते हो। I can consider that length of the arc as r theta, you remember it or not? L is equal to r theta, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, तो a m इंटू जी इंटू साइन थीटा, स्मॉल है तो थीटा मान सकता हूँ, तो थीटा मान लिया, स्मॉल थीटा के समय है, L इज इक्वल टू आर थीटा है, तो कैन आई टेक इट एज हियर दिस इज r इज लेंथ, sorry r is length of the pendulum, so theta is equal to L by r, right? तो r is length of the pendulum, तो L by r, तो L is x here, got it? तो x by L, got it? That r L by r को x by L होगा, x is nothing but length of the arc right here, length of, and L is not radius is nothing but here length of the pendulum right here, then आपको होगा mg into x by L, got it? yes, So then this is restoring force, so restoring force को मैं लिख सकता हूँ into a, but the point is x पॉजिटिव डायरेक्शन में है पर आपका फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो कहना रहे दिस इज माइनस अपोजिट डायरेक्शन में है टू द डिस्प्लेसमेंट, गॉट इट? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में किया तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में, तो x के जगह पर फोर्स को माइनस लिख सकते ना, लिख सकते नेगेटिव डायरेक्शन के वेक्टर फॉर्म में, mm कैंसिल है, तो आप मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस g by l into x, गॉट इट? हाँ, तो ओमेगा स्क्वायर का कंपैरिजन इज कमिंग टू बी g by l, so then t is equal to, this is an SHM, acceleration is equal to some constant to x, so t is equal to 2 pi by omega, omega is nothing but root g by l, that is root or l by g, got it? If theta is, got this it? we had learned in 9th standard directly से, ठीक है, got it? Next, you understood now? क्लास में डेरिवेशन हुआ, हाँ, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऐसे आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, SHM ऑफ है spring pin, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ट्राई करो, मैंने जैसे बोला तो ऐसे है, तो कैन यू डिराइव, कोशिश करो, ठीक है।
1 minute, just I'll revise it for you. तो आपको equilibrium position x naught पे है, which is that x naught is k x naught is mg, x naught is mg by k. इक्विलिब्रियम पे तो आपको k x naught plus restoring force कितना बनेगा? When you displace it from a x distance, k x naught plus x. From natural length you displace it k x naught plus x. So restoring forces will be k x naught plus x minus mg, which is downwards, is equal to ma. So if I draw a is equal to k x naught, तो हमको पता है mg है, mg gets cancelled है, तो k x is equal to ma. तो but x is in this direction, force is in the upward direction. So if I take the signs opposite, a is equal to minus k by mx, and omega square, if I compare with k by m, I'll get time period as 2 pi root or m by k. I hope this is clear. Next one, if I keep in the horizontal level also, if I displace it from a distance of x, so I will get restoring forces minus k x it will be the ma. same, na? So this again, that you will get the 2 pi root or m by k only. But the important one is, अगर आप उधर ग्रेविटी है, इधर ग्रेविटी नहीं है, अगर इधर भी आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसका टाइम पीरियड भी एक्सटर्नल फोर्स रहा है, फिर भी आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा एक, बट उसका भी थोड़ा डिस्प्लेस करके देखा, द टाइम पीरियड विल बी अगेन 2 pi root or m by k. दैट मीन्स आप एक्सटर्नल फोर्स से, ग्रेविटी से आपको इधर टाइम पीरियड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली m by k इफेक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी एंड आल्सो एनी एक्सटर्नल फोर्स आल्सो. ओके. अगर यही सिंपल पेंडुलम को आप अगर एक फ्लूइड में रख दिया, आइडियल केस में फ्रिक्शन का वजह से लूज होता है, डैम्पिंग होता है, अलग बात है, बट बिना फ्रिक्शन से आइडियल फ्लूइड में रख दिया, विस्कोसिटी 0 से, विस्कोसिटी बिटवीन दिस ब्लॉक एंड फ्लूइड 0 मान लिया, तो ये भी टाइम पीरियड वही रहेगा, 2 pi root or m by k इफेक्टिवली. बिकॉज़ इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ. तो अगेन आपको अगर इंक्लाइन प्लेन में रख दिया, स्पेस में भी लेके गया, मून पे ले गया, तो इक्वेशन है. तो आपको उधर भी आपको या इंक्लाइन प्लेन में भी रखा, तो उधर भी आपको टाइम पीरियड 2 pi root or m by k आएगा. मेक ए नोट पॉइंट आउट ऑफ इट. सो इधर इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगा, मतलब अगर आपने फ्लूइड पे रखा, उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन अलग होगा. आप अगर अपन एक्सटर्नल फोर्स कुछ लगाया, उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन अलग रहेगा. ग्रेविटी के अंदर रखा, एक्सटर्नल फोर्स के भी इंडिपेंडेंट है ना? नहीं, वही बता रहा हूँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन बदलेगा. इंक्लाइन प्लेन में रखा तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, ऐसे रखा तो k x naught आया ना, mg by k, x naught is mg by k. इधर बनेगा वो x naught is equal to mg sin theta by k. Got it? तो इक्विलिब्रियम पोजीशंस बदलेगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बदलेगा, बट टाइम पीरियड बदलेगा नहीं. गॉट माय पॉइंट? ओके. Equilibrium position might change, but time period will not be affected. Any external force, make a note point here. Any external force or change in gravity, like moon, change in gravity like moon, or inclined plane, or in fluid, spring block system in a fluid. In all these places, equilibrium position might change. Make a 5-star point. Period remains unchanged. Equilibrium position might change. Time period remains same. That depends upon mass of the block and spring constant K. Okay. Shall I go ahead? Yes. Okay. Now, SHM of a block under spring combination, तो actual formula लिखना चाहिए आपको 2 pi root और m by k effective. Okay, इधर. तो for suppose 2 springs है, k1, k2 है, then k equivalent कितना बनेगा इसका, सीरीज में है तो ऐड करेंगे ना. नहीं, वही गलत किया, k1 k2 by k1 plus k2.
नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऐड, डिस्टेंस ऐड होगा तो होता है। नहीं नहीं नहीं, इधर क्या होता है, सीरीज में अगर कोई लगाया आपने स्प्रिंग्स का, throughout the springs force should be same, entire spring force should be same. Okay, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है दोनों का, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2, गॉट इट। तो यस, फोर्स बाय के इक्विवेलेंट बनेगा, दोनों के एक स्प्रिंग के रिप्लेस किया, दैट फोर्स बाय के इक्विवेलेंट, बट फोर्स तो सेम है दोनों में भी, तो f बाय k1 प्लस f बाय k2, तो f कैंसिल किया तो 1 बाय k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2। सीरीज में फोर्स सेम होगा थ्रू आउट, बट पैरेलल में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, एक ब्लॉक रखा, डिस्प्लेसमेंट सेम होता है तो फोर्स अलग होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू f1 प्लस f2, f इज इक्वल टू व्हाट, k1 x प्लस k इक्विवेलेंट इनटू x, नेट दोनों स्प्रिंग से रिप्लेस किया तो k इक्वल x, तो k1 x प्लस k2 x कैंसिल है बिकॉज x इक्वल है, तो k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2, तो दिस इज इन पैरेलल, दिस इज फॉर सीरीज। ओके, जस्ट अ मिनट। सिर्फ पैरेलल का फिर से समझाना। पैरेलल में दो स्प्रिंग्स ऐसे रखा तो इसका डिस्प्लेसमेंट सेम है दोनों स्प्रिंग्स का, फोर्स अलग होगा, इसके में F1 होगा, इसमें F2 होगा, बिकॉज K1 K2 अलग है ना, डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो हाँ, तो टोटल फोर्स कितना होगा, अभी दोनों स्प्रिंग्स उठा के एक फोर्स लिख रहा हूँ, टोटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू फर्स्ट स्प्रिंग प्लस फोर्स ड्यू टू सेकंड स्प्रिंग, राइट। मैं टोटल फोर्स को K इक्विवेलेंट इनटू x लिख सकता हूँ, KX, दोनों हटा के एक स्प्रिंग लिख रहा हूँ, वो स्प्रिंग के इक्विवेलेंट इज K इक्विवेलेंट, एंड उसका x भी x सेम x लिख रहा हूँ, तो कि दोनों में x तो सेम है, डिस्प्लेसमेंट तो सेम, इज इक्वल टू f1 इज k1x, x तो सेम है, f2 इज k2x, x कैंसिल कर दिया, तो k इक्विवेलेंट इज इक्वल k1 प्लस k2 बनेगा। ओके, मतलब इन सीरीज फोर्स इज कांस्टेंट एंड इन पैरेलल डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट। हाँ, सो इन सीरीज में क्या करोगे, x इज इक्वल x1 प्लस x2 लिखोगे, क्योंकि दो डिस्प्लेसमेंट्स अलग है, बट फोर्स सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा। इन पैरेलल में क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, फोर्स इज इक्वल टू f1 प्लस f2 लिखोगे, तो k इक्विवेलेंट विल बिकम k1 प्लस k2 इन पैरेलल, k1 k2 by k1 प्लस k2 इन सीरीज। डन सर। ठीक है, इधर इंपॉर्टेंट एक और पार्ट है, स्प्रिंग को कट किया तो क्या होता है पता है आपको, सर ने बताया चीज, तो जब भी एक स्प्रिंग के है, ये नीट में 2017-18 में दिया, दो क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चन इसके ऊपर दिया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मेक इट 5 स्टार एवरीथिंग व्हाट आई, एक स्प्रिंग को कट किया दो पार्ट्स में, सपोज एनी एन नंबर ऑफ पार्ट्स में भी कट कर सकते हो, बट वन थिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रोडक्ट ऑफ k into L remain constant, natural length, this is for given spring, not two different in comparison, that means प्रोडक्ट ऑफ KL के remains इक्विवेलेंट एंड KL remains constant, okay, तो एक स्प्रिंग ऐसे है, ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k, इसका ओरिजिनल लेंथ L0 है, स्प्रिंग कांस्टेंट k0 है, that k0 and L0 product remains constant even if you are cutting into different parts of springs, okay, how sir, how is it possible, is equal to, हाँ ना, if L1, हाँ ना, इसको दो पार्ट्स में कट किया फॉर सपोज, तो आपको होगा ये L1 पार्ट को ले स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा k1, L2 पार्ट के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा k2, दैट शुड बी इक्वल टू k1, L1 इज इक्वल टू k2, L2 इज इक्वल टू, ऐसे थ्री पार्ट्स में कट किया तो k3, L3 इज इक्वल टू k4, L4 इज इक्वल टू, गॉट इट। ओके, मतलब कांस्टेंट रिमेन सेम, नहीं, k into L remains same, not constant remains same, KL रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोडक्ट, दैट मींस k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ कर सकते हो आप,
लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, सेम स्प्रिंग तो कट किया तो लेंथ कम कर रहे हैं तो आप स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा। वैसे फॉर सपोज एक स्प्रिंग है, एक L/2 में कट किया, ओके, इनिशियली K है इसका, K0 इंटू L0 इज इक्वल टू K1 इंटू L/2, राइट, इज इक्वल टू K2 इंटू L/2, राइट, दैट इज L/2, L गेट्स कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो K1 will become 2K0, K2 will become what, 2K0, ऑब्जर्व कर रहे, दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करने के बाद उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया, डबल हो गया, ऐसे नहीं कि डबल होगा, बट द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2 इज इक्वल टू K3 L3 कांसेप्ट है, गॉट इट। हाँ, बट अनदर केयरफुल, आपको इधर वेरिफिकेशन भी देखो आप लोग, मैं दोनों अगेन वापस कंबाइन कर रहा हूं फॉर सपोज, ओके, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 2K0, दूसरा का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 2K0 आ गया, दोनों वापस कंबाइन कर रहा हूं, मतलब वैसे वापस एक स्प्रिंग जैसे जोड़ रहा हूं, नहीं जोड़ रहा हूं सीरीज में, हाँ, सो सीरीज में क्या आता है K1 K2 by K1 plus K2 और नॉट, K1 K2 by K1 plus K2, K0 into K0 2K0 by 2K0 plus 2K0 is 4K0, तो आप K0 K0 कैंसिल, तो आंसर अगेन बन गया 2 2 4 कैंसिल, अगेन K0 आ गया, चेक करो, सेम ही आ गया फिर 4K0, वापस सीरीज में कंबाइन किया तो वापस वो ओरिजिनल आ जाएगा, कट करके गया तो मतलब वन what do you get here, K1 L1 is equal to K2 L2 is equal to K3 L3 so on, this is quite important and make it a 5-star note. हो गया, लिख लिया। Okay, so अगर ऐसे स्प्रिंग से, तो ऐसे सपोज n स्प्रिंग से, फॉर सपोज एक स्प्रिंग है n स्प्रिंग से, तो जिनके एक एक स्प्रिंग के पास के एक आइडेंटिकल स्प्रिंग से, वो सारे सारे पैरेलल में रख दिया ऐसे, ओके, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है K प्लस K प्लस K प्लस K प्लस K n के, राइट, NK, तो टाइम पीरियड कितना होगा इस चीज का 2 पाई रूट और m by M by NK, nk, सॉरी एक मिनट, ओके सॉरी जस्ट लेट मी चेंज द क्वेश्चन हियर, एक स्प्रिंग है, उसको n पार्ट जैसे कट किया, तो कितना हो गया एक एक के स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल पार्ट्स के कट किया, तो K1 K1 K0 K2 L0 is K1 equal to L1 K1 L1 is L by n, K1, right, हाँ, K2 into L by n, right, n पार्ट्स में कट किया, तो K1 कितना बनेगा n k रॉट, राइट, इक्वल पार्ट्स ना, बट इक्वल पार्ट्स है इसलिए L by n लिख रहा हूँ, L0 by n, ओके, तो K1 will become n K0, K2 will become n K0, ऐसे K, so कितना बनेगा K1 K2 K3 everyone is n K0, right, n times K0 हो गया, देन अभी मैं सारे पैरेलल में जुड़ाया, उसका K इफेक्टिव निकालना है, तो कितना बनेगा कि पैरेलल में K1 प्लस K2 प्लस K3, K1 K2 plus ऐसे K3 ऐसे कितना हो गया इधर n K0 प्लस n K0 प्लस सो ऑन बनेगा n टाइम्स, तो मेरा आंसर क्या बनेगा n into n K0 और नॉट,
आंसर कितना बनेगा, एन स्क्वायर के नॉट बनेगा, नहीं बनेगा, इक्विवेलेंट हाँ, और स्प्रिंग कांस्टेंट। मतलब एक स्प्रिंग को मैं एन पार्ट्स में कट करके वापस वो एन पार्ट्स पैरेलल में जोड़ दिया तो मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा एन स्क्वायर के नॉट। ओके, तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई रूट और m by k effective is n square k naught, that will become to be 2 pi by n into root or m by k naught. This 2 pi by 2 pi root or m by k naught is what, is the original time period. Then the time period will become is equal to एन ऑफ टाइम पीरियड। t naught by n, जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है उससे n टाइम्स कटेगा, फ्रीक्वेंसी n टाइम्स बढ़ेगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी एन टाइम्स। ठीक है, अभी इस कॉन्सेप्ट यूज करके आपके मटेरियल में क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इधर मैं एक्सप्लेन करूंगा बट आप बताओ मुझे, m है, k1 है, k2 है, बताओ ये सीरीज में है पैरेलल में है? हंस रहे हो? व्हाट इज द रीजन फॉर योर स्माइल? कैसे करेंगे इसे सीरीज? अरे डिस्प्लेस करके देखो, x डिस्प्लेस करो, इसका जितना डिस्प्लेसमेंट पे उसका भी उतना डिस्प्लेसमेंट चेक करो। हाँ, 1 मिनट सर। एंड इसका फोर्स किस तरफ रहेगा, मतलब k1 का फोर्स स्प्रिंग पर इस तरफ, हाँ, इसका इस इसके तरफ, तरफ मतलब पैरेलल केस हाँ, जैसे है ना, डिस्प्लेसमेंट सेम है, पूरा फोर्स ऊपर की तरफ सेम है, रहेगा। इसलिए फोर्स वेरी करेगा। हाँ, पैरेलल है ये। ठीक है, तो आपको क्या हो गया इसका, तो इसका इफेक्टिव दिखने में सीरीज जैसे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे K1 हैं? प्लस K2 होगा फिर। हाँ बट दिखने में सर के सीरीज, दिखने में सीरीज जैसे दिखने दिख में रहे हैं, सीरीज जैसा है। तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया पहले ताकि आप खुश हो जाओगे। क्योंकि आप देखो एक बार पेज नंबर, अरे पहले 75th क्वेश्चन, मतलब पता नहीं आपका नंबर कौन सा है, ऑसिलेशंस ऑफ स्प्रिंग का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। वो कॉन्सेप्ट लगा के आप सॉल्व कर सकते हो।